ابتدا کرتا ہوں رب جلیل کے نام سے جو نہایت ہی بہت بڑا اور رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے حوالے سے ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے حوالے سے کچھ چند باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی پاک افواج سے مطالبہ کرتی ہے کہ وقت آ گیا ہے قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ میں اور دوبارہ التجا کرتا ہوں آرمی چیف کو، ہم اپنی پاک فوج کو، کہ وقت آ گیا ہے اس ملک کے اندر قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ یہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا مطالبہ ہے۔ یہ اسی لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس ملک کے اندر سویلین حکومت کی رٹ موجود نہ ہو، جس ملک کے اندر ان کے چیف ایگزیکٹو کی، جس کا جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ ایک طرف کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، فلاں پارٹی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کس بنیادوں پہ آپ لوگوں نے مذاکرات شروع کیے کالعدم دینے کے بعد؟ کیا آپ لوگ کو ان معصوم لوگوں کی اموات نظر نہیں آئی جو ہمارے فورسز کے بچے تھے؟ وہ ہمارے معصوم لوگ جو ہمارے فورسز کے لوگ تھے، جو 500 سے اوپر لوگوں کو ہاسپٹل داخل کر دیا گیا۔ کیا یہ لوگ کس کا حکم مانتے تھے؟ وقت حکومت کا حکم مانتے تھے، اور جنہوں نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں، کالعدم دی ہوئی پارٹی کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں، جب وہ گولیاں چلاتے ہیں اور ان کا جو نقصان ہوا، جو ان پر ان لوگوں نے ان کو قتل عام کیا اور آپ کے فورسز کو 1 ہفتے تک اغوا کر کے رکھ دیا گیا، تو آپ کی رٹ تو اس ملک کے اندر موجود ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تاکہ آپ اپنے فیصلے کی پاسداری کر سکیں۔ آپ اپنا فیصلے کی پاسداری کرنے تو دور کی بات، لیکن آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ایک کالعدم تنظیم کے آگے۔ کیا آج ہم ان قوتوں سے بھی، ہم پاک افواج سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی پلیٹ فارم سے، کیا آج ایک گروہ کھڑا ہو کر پاکستان کی عوام کو تذلیل کرتا ہے، پاکستان کی عوام کو مفلوج بنا کے رکھتا ہے، اور ہم 22 کروڑ عوام کے روزمرہ کی زندگی کو مفلوج بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے فورسز کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے فورسز جو ہیں فورسز کے جو لوگ ہیں شہید ہو چکے ہیں، ان کا پرسان حال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس پارٹی کے آگے گھٹنے ٹیک کر اور ان کے مسائل حل کر کے اور ان کے مطالبے تسلیم کر کے اور ان کو تقویت دے دی گئی تاکہ یہ 1 2 3 ماہ کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے، فیض آباد میں دھرنا لگائیں گے اور ملک کو مفلوج بنائیں گے اور عام نواز زندگی کو مفلوج بنا کے رکھ دیں گے، تاکہ کوئی بھی بندہ نہ ہاسپٹل جا سکے، کوئی بندہ اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے راستے میں نہ جا سکے، تاکہ ان کو ہر چیز ان کی بند ہو جائے گی، تاکہ وہ بندہ وہیں تڑپ کر کے اپنے گھروں کے اندر مر جائے۔ یہ کہاں کے حالات ہیں؟ یہ کہاں کی حکومت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو آپ کو ان کو بنیادی حقوق دینے ہیں، اس کی مہنگائی، جو ان کے اوپر مہنگائی کا طوفان آپ نے ڈالا ہوا ہے، کیا اس کے لیے آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تاکہ مہنگائی کے طوفان کو کم کر دیا جائے؟
पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट के अंदर बहुत कम है, यहाँ अब पेट्रोल की कीमत आसमान पे लगाई हुई है। क्या कोई आपसे पूछने वाला है? नहीं, क्योंकि आपके अंदर सलाहियत नहीं है। मैं पाक मोहम्मद का गुलाम हूँ, हम नामूस रिसालत के वो गुलाम हैं, हम नामूस रिसालत पे आंच नहीं आने देंगे। हम पाक मोहम्मद के गुलामों के गुलाम हैं, हम नबूवत के कायल हैं, क्योंकि नबूवत आती है उसको नबूवत को तब्दील नहीं किया जा सकता, रिसालत आती है रिसालत को तब्दील नहीं किया जा सकता। कुरान एक बार आ जाता है, कुरान शरीफ को तब्दील नहीं किया जाता। जब हम मुसलमान हैं, जब हमारा ये अकीदा है, इन चीज़ों पे है, तो फिर कौन ऐसा इंसान है जो अपने लोगों का आकर अपने लोगों के इमलाक को जलाए, अपने इमलाक को तबाही के किनारे तक पहुंचा दे, इस मुल्क की मैशत को तबाह करके रख दे और पहिया जाम कर दे? ये कहाँ के असूल हैं इस मुल्क के अंदर? ये पहिया जाम की सियासत कब तक इस मुल्क के अंदर चलती रहेगी? क्या महज़ब तरीके से हम कोई एहतजाज नहीं कर सकते? अगर मेरे अंदर मेरी पार्टी को या किसी भी पार्टी को अगर कोई इश्यूज हैं, कोई मुतालबे हैं, कोई एक महज़ब तरीका ढूंढ कर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन उसका ये तरीक़ेकार नहीं है आप पहिया जाम कर दें, उसका ये तरीक़ेकार नहीं है लोगों को मारना शुरू कर दें, उसका ये तरीक़ाकार नहीं है कि रोड ब्लॉक कर दें, उसका ये तरीक़ेकार नहीं है कि जो दुकानें हैं उसको आप बंद कर दें ताकि आम रवाजी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सके। ये तो अल्लाह के हाथ में है इंसान की जिंदगी और मौत, ये तो अल्लाह के हाथ में है इंसान को रिज्क देना। अगर ये रिज्क देना इंसान के हाथ में होता तो काश 22 करोड़ अवाम भूखी मर जाती। क्यों कि हमारे अंदर ये कुव्वत नहीं है कि हम किसी का एहसास कर सकें, हमारे अंदर ये कुव्वत नहीं है कि किसी को अगर हम तकलीफ दे रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी। क्या आप लोग अगर आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिकान रसूल के गुलामों के गुलाम हैं, अगर आप हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप आएँ कर्जा इकट्ठा करें, जो कर्जे का पैसा है वो उतारें, उसके मुंह में मारें, और हम भी यही चाहते हैं कि उस सफ़ीर को निकाला जाए। उस सफ़ीर को उसी सूरत में आप निकाल सकते हैं, पहले तो आप उनसे जो कर्जा लिया है वो तो उनको अदा कर दें, लेकिन यहाँ मौला अली का भी कौल है, आपका पाक मोहम्मद का भी कौल है, किसी के हकी खुदा को आप गलत मत कहें, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे हकी खुदा के खिलाफ कोई बात करके बैठ जाए। क्योंकि हम दूसरों के खिलाफ जब बातें करते हैं तो जाहिर बात है जो हमारा मुखालिफ होगा, जो काफिर होगा, वो हमारे सच्चे खुदा के खिलाफ बात करेगा। हम नहीं चाहते हम ऐसी बातें न करें जो हमारे सच्चे खुदा के खिलाफ बात कोई करे, हमारे पाक मोहम्मद के खिलाफ कोई बात करे, हमारे आशिकान रसूल के खिलाफ कोई बात करे, हमारे खुलफाए राशिदीन के खिलाफ कोई अगर बात करे तो हम नहीं चाहेंगे हमारे इन हस्तियों के खिलाफ कोई बात करे, हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे, हम उनको अजियत देंगे। लेकिन अजियत देने का ये मकसद नहीं है कि हम उनके हक़नाह की खुदा को गलत कहते रहें और वो जब हमारे खुदा को कहे कि हमारे अंदर भी इतनी सहमत होनी चाहिए क्या हम समझ सकें। हम नहीं समझ सकते, लेकिन इंसान बने, इंसान बनने के बाद मुसलमान होंगे तो हम इन सारी चीज़ों के कायल होंगे, कुरान शरीफ के भी कायल होंगे, पाक मोहम्मद की नबूवत के असूलों पर चलने के हम कायल होंगे, अदरवाइज हम भटकते रहेंगे। और मैं दोबारा पाक आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को इल्तिजा करता हूँ, वक्त आ गया है, ये नाहल हुकूमत है, इसके अंदर अहलियत नहीं है हुकूमत चलाने की, जिसके अंदर इम्पोर्टेड लोगों की कैबिनेट बनी हुई हो, जिसके अंदर जो बंदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इम्पोर्टेड बंदा लगा दे और जिसके अंदर ये एहसास नहीं होंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेड है, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है। अगर वहाँ इलेक्टेड बंदा लगाया जाता है उनको आवाम के दर्द का एहसास होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेड
टेढ़ बंदे आएंगे तो उनको आवाम के दर्द का एहसास नहीं होगा। आवाम का दर्द एहसास वही कर सकता है जो ग्रास रूट लेवल से, जो आवाम से वोट लेकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता है, वो पार्लियामेंट में जाकर आवाम की नुमाइंदगी करता है। आज हमारी कैबिनेट आवाम की नुमाइंदगी से खाली पड़ी है, इम्पोर्टेड लोगों के साथ भरी पड़ी है। क्योंकि इस हालात में जहां कशमकश हो, जाती इंतकामियां कार्रवाइयां की जाएं, कहीं आप जाती इंतकामियां कार्रवाई करते हैं, कहीं आप घुटने टेक देते हैं, इसका मतलब आपके अंदर इंसाफ नहीं है, आप अमीन और सादिक नहीं हैं। अगर आप अमीन और सादिक होते तो हर चीज पे इंसाफ करते। इंसाफ तब होता है सबको बराबरी के बुनियाद में लेके चलो। आप अपोजिशन के साथ नाइंसाफियां करो और एक जुमा 8 दिन नहीं हुआ वो पार्टी बनी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से, अगर वो हमारे पाक मोहम्मद का नाम यूज करके मैदान अमल में आता है, क्या उनको पाक मोहम्मद ने कोई सनद दी हुई है कि लोगों को मारो, लोगों के इमलाक को जलाओ? अगर लोगों के इमलाक को जलाया जाएगा तो इंसान के दिल से क्या निकलता है? कभी अगर आप इतने आशिकान रसूल हैं, आप अपनी गाड़ी को तो जलाकर दिखा दो। जिस दिन आप अपनी गाड़ी को जला के दिखा देंगे तो हम 10 गाड़ियां और आपको जला के दिखा सकते हैं, क्योंकि हम पाक मोहम्मद के लिए कुर्बानी देना जानते हैं। लेकिन आप कुर्बानी देना नहीं जानते। आप जब अपनी जात पे आएंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। अब जब दूसरों लोगों के इमलाक को जलाएंगे तो आप सरफरस्त होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप लोग इंसान नहीं हैं। अगर इंसान होते तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाते। कौम भी हमारी है, सियासत भी हम अपने लोगों के लिए करते हैं, मुल्क भी हमारा है। जब मुल्क भी हमारा हो, सियासत भी हम अपने लोगों के लिए करें, तो फिर इस तरह के हथकंडे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम ये नहीं चाह रहे कि आपका एक बुनियादी हक है, आप पाकिस्तान के अंदर सियासत कर सकते हैं। हम आपको सियासत से महरूम नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत सीखें, इंसान का दर्द का एहसास करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अदरवाइज ये मुल्क फना मत करें। मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना, जिसका मतलब ये है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह जब मतलब था तो आप उस मतलब को समझ जाते। क्यों कि वो आप दूसरी कुव्वतों की, यूरोपियन यूनियन की आप बात कर रहे हैं, आप फ्रांस की बात कर रहे हैं। वहाँ जब यहाँ आप उनके खुदाओं आकाओं के खिलाफ बात करेंगे तो वहाँ वो हमारे आका के खिलाफ बात करेंगे। तो ये हम तो अपने आका की तौहीन खुद करवा रहे हैं। हमारे आका ने, हमारे पाक पैगंबर ने दर्स दिया है, इंसानियत की कदर करो, मुसलमान बनो, सच्चाई की तरफ गामजन हो, झूठ को छोड़ो, फितना फसाद छोड़ दो, शिया सुनी झगड़े खत्म करो, इंसान बनो, भाईचारा कायम करो, इस मुल्क के अंदर एक कौम बनो, एक मुल्क बनाओ, एक कानून हो इस मुल्क के अंदर, एक निजाम के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। ये पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी फिर भी दोबारा बार बार यही मुतालबा करती रहेगी कि इस मुल्क के अंदर वक्त आ गया है, इस मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। ये लोग हुकूमत नहीं चला सकते, ये घुटने टेकने वाले लोग हैं। कल खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती के लिए कोई ऐसा वक्त आ जाए तो ये लोग पीछे घुटने टेक कर भाग जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम मुल्क की, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई आंच आने दें। हम पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी सूरत में कर सकते हैं कि इस तरह भगोड़े लोगों को साइड कर दें और कौमी हुकूमत बना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी जिंदाबाद।